I have a special guest in this episode of the Misal podcast. He's a creative tour de force and an invisible hand behind many of your favorite creators that you love and cherish. I, for one, have learned a great deal about editing from his numerous YouTube tutorials. And now he's bringing all your favorite creators as well as experts in their fields onto one platform so you can learn in-demand skills and up your game. His name is Amir Bhagat and he's a founder of I Teach Stuff. It's like Skillshare but better. And it's in Urdu. Let's listen in. Welcome to the Misal podcast. Amir, how are you? I'm good. How are you, Zayed? I'm doing really well. But for me, it's really an honor, first of all, to host you. I am really excited for this conversation Me too. and look forward to learning a lot from you. A big fan of your work. Even before we started talking, I used to watch your tutorials on YouTube on Adobe Premiere Pro. So thanks for teaching me Adobe Premiere Pro. And so you transitioned from being a creator, then you're an instructor too, and now you're becoming a founder. So I would love to learn more about that. So before we can get into that, let's get started with a quick intro. Please tell me a little bit about yourself and the problem you're trying to solve with I Teach Stuff. My name is Amir Bhagat and I am the founder of I Teach Stuff. So the problem is very simple. It's as simple as going to a school and learning something. So this is just a problem of many students क्योंकि जहाँ पे जब हमारे पाकिस्तान because the problem I'm showing is currently just only for people who speak the language Urdu because मैं global नहीं जा रहा. So it's just as what you should say Skillshare जिसला है. You host courses and people see the courses. As simple as that. कोई नई innovation नहीं है, कुछ भी नहीं है. But just the courses that I make are the good quality courses because I come from educational background. I have been teaching for the last 12 years, almost a decade now. So I have that teaching background and always when I used to look at YouTube tutorials and all those stuff because I have also learned from YouTube. So YouTube में ना हर चीज़ बहुत अच्छी है. अभी भी I would prefer if you don't have the money, go for go for YouTube because YouTube has everything. But the only thing that YouTube doesn't have is the quality control because when you're watching something on YouTube ना, so if let's say you want to learn a Python language, तो आप क्या करते हो कि यू स्टार्ट सर्चिंग के पाइथन ट्यूटोरियल्स. तो वाइल यू आर लुकिंग एट वन ट्यूटोरियल वहाँ पे 18 लोगों की लिस्ट और है यहाँ पे कि आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं. यू कैन नॉट फॉलो देम. आप ज़रा गुम जाते हो कि यार मुझे एक जगह बताओ कि मैं यहाँ से पढ़ लूँ एंड आई एम गुड विद दैट. तो वो यूट्यूब में बड़ा मसला हो रहा था. तो दैट इज़ वाई आई स्विच टू मतलब मैंने उससे पहले बैक इन आई थिंक 2014-15 आई बॉट लिंक्डइन की सब्सक्रिप्शन और लिंक्डइन नहीं सॉरी लिंडा. It was Lynda back then. I bought Lynda subscription of $44 per month back then. तो मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया and I loved the way they were teaching because बड़े specialized courses थे. अगर आपको Photoshop सीखना है and if you want to learn Photoshop for photographers, this is the course. तो बहुत ही good models and I like that model. You mentioned the quality control and everything. So how do you ensure that the quality of courses on I Teach Stuff is, it's better than YouTube or other platforms? एक तरीका ये है कि what I do is कि I make my own courses. Like I shoot and record my old courses in my studio. अगर मैं कहीं जाए, let's say हमने अभी course shoot simultaneously while we are doing this, there's a shoot happening in Lahore जहाँ पे course shoot चल रहा है अभी. बट वहाँ पे मुझे ये एश्योरिटी है कि आई हैव अ रिप्रेजेंटेटिव देयर जो कि वहाँ पे एक कोर्स शूट कर रहा है. बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आए या कोई स्टूडेंट यहाँ पर आए तो दे गेट द ऑप्टिमम रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस बिकॉज व्हाइल यू आर लर्निंग समथिंग यू डोंट वांट एनी हिंड्रेंस. इट शुड बी एज ईजी एज यू गोइंग टू अ स्कूल और यूनिवर्सिटी. बीच पर अगर थोड़ी सी भी चीज़ अटकेगी या फिर आपको कैमरे की चीज़ जैसे लेट्स से वी हैव लास्ट आई थिंक लास्ट थर्सडे वी वर रिकॉर्डिंग अ ड्राइंग कोर्स. तो वी हैड लाइक 3 एंगल्स हियर. एक तो कैमरा लाइक टीचर्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं सो यू कैन ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द टीचर्स. देन देयर इज अनदर कैमरा फ्रॉम टॉप यहाँ पे सो यू कैन लुक एट द ड्राइंग व्हाइल शी वाज ड्राइंग एंड देन देयर वाज अनदर एंगल फ्रॉम दिस एंगल सो यू कैन सी द हैंड वेयर द हैंड इज गोइंग सो यू कैन एक्चुअली फॉलो द हैंड एज वेल. तो ये क्वालिटी मेक श्योर करता हूँ मैं इन IT stuff. And that is why I think the courses that I produce in IT stuff are like way more learning friendly. कौन से courses हैं जो फिलहाल I Teach Stuff पे हैं या and how many courses are you planning to introduce in the next coming months? So right now we have around 20 plus courses. Most of them are focused on multimedia field because I started with multimedia. I am in multimedia field, that is photography, videography and all those stuff. Because my skills are on those lines and I know people who are on those lines.
So this is the core experience of IT Star right now. And right now what we are focusing is on to make more courses that we might want to take this tally of 20 plus courses to around 50 plus courses in next 2 months, making more media related courses right now. We just want to focus on media for this year, and then from next year we can expand on more horizons. Initially, jab, when you started out, I remember you mentioning it in your videos that you basically posted on your stories and on Instagram, and people would send you the money on WhatsApp and everything. So how did you go from that to now offering the subscription service? What was the transition like? So this started, this is just like IT stuff journey पूरी बतानी पड़ेगी just to understand this question. So it started in 2018. 2018 में ये हुआ कि I was doing edit meetups. Edit meetup में क्या होता था कि I had contacts with YouTube people जिसको students used to follow them. Irfan Jureja was there, Muro Bhai was there, Hamza Ibrahim was there, and many others were there. Bekar Film and all those stuff, they were there. So I knew them, and I knew that I have some skills that I can teach to students. So मैंने सोचा यार कि ना, because I was getting a lot of followers from Irfan at back those days ना, मेरे अचानक से कोई 200 से 2000 followers हो गए थे, and I was like मैं celebrity बन गया. Because अचानक से आपको जब followers बनते हैं तो फिर मुझे लगा कि मुझे ना उनको पढ़ाना चाहिए, because मेरी जो इमेज बनी हुई ना वो बहुत एक वो इमेज है कि बहुत टेक्निकल टीचर है जो कि ही नोज द सॉफ्टवेयर एंड स्टफ. बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी में भी इसकी तरह का बंदा लड़का था, तो मैंने कहा चलो लेट्स गो विद इट. फिर मैंने क्या किया कि पीपल यूज टू कम टू मी कि मुझे ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है. फिर मैं द फर्स्ट थिंग टू गेट स्टार्टेड इन एनी कंटेंट क्रिएशन इज टू गेट द सॉफ्टवेयर फर्स्ट. और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के किस तरह चलता है, तो मैंने इनको कहा कि चलो मैं ना जो आपको इंस्टॉल करके दूंगा, बट अब मैं सबके पास तो नहीं जा सकता ना, सबको मैं ऑनलाइन क्लास दे सकता हूँ. मैंने कहा देखिए एक जगह हम देखते हैं कराची में, वहाँ पे हम सबको बुलाएंगे, एंड देन यू कैन कम एंड गेट योर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क. ठीक है, ये डिसाइड हुआ. देन आई सेड कि मैं फ्री में तो नहीं कर रही है, बिकॉज मैं जा रहा हूँ, अपना टाइम लग रहा है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल है, ऑल दो स्टफ. तो बट ये भी नहीं करना कि फ़ीस अभी कितनी डिसाइड करें, 100 रुपये 200 रुपये. अभी अगर चलो लेट से 100 रुपये भी डिसाइड कर दिया आपने, तो वहाँ पे बैठेगा कौन गेट पे? अगर कोई 1000 का नोट लेकर आ रहा है, कोई कार्ड से आ रहा है, तो लाइक ये क्यों करना है? तो आई डिसाइडेड कि फ़ीस जो होगी वो होगी एक चॉकलेट. दैट इज़ हाउ द एडिट मीटअप स्टार्टेड. तो मैंने एक चॉकलेट की फ़ीस रखी एंड पीपल स्टार्ट कमिंग. और फिर कोई बच्चा कोई 2 रुपये की डेली मिल्क ला रहा था उस वक्त. एक आई रिमेंबर इन वन मीटअप एक बच्चा आया, दिस बिग बास्केट ही ब्रिंग और ही वॉट, एंड देन उसमें जो है वो डेयरी मिल्क थी, उसमें जो है वो मार्स थी, उसमें गैलेक्सी थी, उसमें मिल्की हुई थी, हर तरह की चॉकलेट, फरेरो रोशर्स थी, ही लाइक वॉट एवरीथिंग. और हमने फिर वो तमाम बच्चों को बांटी. दिस इज़ हाउ द एडिट मीटअप स्टार्टेड. एडिट मीटअप क्योंकि बहुत कराची सेंटर्ड थे, बिकॉज आई वॉज इन कराची, हर महीने में हम एक बार करवाते थे. तो जब वो होने लगा तो आई स्टार्टेड गेटिंग DMs फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान के. अब लाहौर में भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी यूट्यूबर्स थे, वहाँ भी बच्चे सीखना चाह रहे थे. तो मैंने लाहौर में भी किया, इस्लामाबाद में किया, बट बहुत ज़्यादा जो है ना ये मैनेज करना मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफकोर्स आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग. और क्योंकि मैं चार्ज नहीं कर रहा तो यूट्यूबर से फ्री मारे, बिकॉज इन्हों के वो कोई चार्ज जब है ही नहीं, आगे से पैसे नहीं आ रहे, तो उनको भी क्यों. तो उन्होंने जब ये करना शुरू किया, फिर मुझे बहुत रिक्वेस्ट आनी शुरू की यार हमें ये चीज़ सीखनी है. तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो है एक कोर्स बनाऊंगा, आप लोग खरीदेंगे. अब वो जोश पर सब हाँ बोल लेते हैं कि हाँ हम खरीदेंगे. तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने घर पे ही जो आई हैड द कैमरा स्टफ, मैंने अपना एक कैमरा यहाँ लगाया, एक कैमरा ऊपर लगाया, और मैंने बेसिक वीडियो का कोर्स बनाया. उसका नाम आज भी ये वीडियो बेसिक्स. उस पर व्हाट आई डिड कि मैंने जो है वो फ्रेम साइज़ क्या होती है, फ्रेम एंगल्स क्या होते हैं, ऑल दो स्टफ, HD क्या होता है, 4K क्या होता है, वो तमाम लिख के मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया. फिर जो है ना मैंने एक दिन अनाउंस किया कि यार मेरा कोर्स रेडी है, इफ़ यू वांट टू बाय 1500 रुपीज़ प्राइस है इसकी, 50% डिस्काउंट है, 750 रुपये का है. आई गॉट अ न्यूज़ नंबर फ्रॉम टेलीनॉर, और ये नंबर है, इस में आप ईजी पैसा कर दो, तो मैं आपको ड्रॉप बॉक्स का लिंक दूंगा. तो बिकॉज मुझे नहीं पता कि पायरेसी वगैरह भी लोग करेंगे. मैं कहा इट्स द फर्स्ट थिंग इन द बिजनेस स्टार्ट. तो जब मैंने वो किया तो आई गॉट नेक्स्ट 75 पेज, 75 बच्चों ने आई थिंक वो खरीद लिया था. हाँ, 75 बच्चों ने एक दिन में ख़रीद लिया था. मैंने कहा ओह दिस हैज़ पोटेंशियल. एंड आई न्यू कि जब मैं ड्रॉप बॉक्स लिंक दे रहा हूँ तो इट्स शेयरेबल. कोई भी अगर मुझे लेट से जायद तो खरीदते हैं, जायद हैव अ फ्रेंड हु आल्सो वांट्स टू गेट इट, तो शेयर कर सकते हैं. आई न्यू दिस वाज गोना हैपन. तो ये जब हुआ और तो मुझे लगा ये तो अच्छा सीन है. तो फिर मैं अपने एक दोस्त से मिला एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू शॉपिफाई. क्या देयर इज़ अ वेबसाइट को शॉपिफाई वेयर यू कैन डू दिस स्टफ. अब शॉपिफाई में जो है मसला ये था कि स्टिल इट्स अ वेबसाइट टू सेल फिजिकल प्रोडक्ट्स. दैट इफ यू वांट टू सेल दिस, आप प्लेस कर सकते हैं, यू कैन टेक फोटोज एंड यू कैन शिप इट. बट मेरे तो थे कोर्सेस से, तो आई नीड टू गेट होस्टिंग एंड ऑल द स्टफ
खैर वो बाद में आई सब कुछ चीज़ें। तो फिर मैंने Shopify पे लॉन्च किया एंड वी स्टार्टेड, बिकॉज उससे पहले ना मैंने कोर्स शूट वगैरह रखा हुआ था अपने दोस्त के साथ, अमीर अली के साथ। दैट वाज द सेकंड कोर्स ऑन द वेबसाइट, करेक्टर डिज़ाइन का कोर्स था। एंड आई रिमेंबर कि उस दिन मेरा कैमरा ख़राब हो गया था, तो वी शॉट द कोर्स विद द फोन। एक यहाँ पे GoPro लगा हुआ था, एक फ़ोन ऊपर लगा हुआ था, एंड द कोर्स इज स्टिल ऑन द वेबसाइट। टॉक अबाउट क्वालिटी कंटेंट बट स्टिल ऑन द वेबसाइट। तो वो कोर्स था वहाँ पे। एंड अमीरली उस वक्त अचानक उसको फेम मिलती है बिकॉज ही ड्रू अ वेडिंग रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर इकरा एंड यासिर हुसैन। तो उस वक्त उसको बड़े फॉलोअर्स आ रहे थे, तो इसने कहा अमीर आज कोर्स लॉन्च करके देखते हैं, वेबसाइट पर भी लाइव भी है, लेट्स स्टार्ट विद माई कोर्स। मैंने कहा ठीक है। एंड देन आई रिमेंबर वी सोल्ड अराउंड 50-60 कोर्सेज इन अ डे ऑन द वेबसाइट। एंड मेरे ईजी पैसे की लिमिट जो थी वो उस दिन मैक्स आउट हो गई थी। आई थिंक लिमिट कितनी थी, 30-40 हज़ार रुपये लिमिट थी, वो मैक्स आउट हो गई थी। तो दैट इज़ हाउ द वेबसाइट स्टार्टेड। एंड देन एक वन थिंग आफ्टर अदर एंड जस्ट फॉलोज। So that is the journey. How did you decide to like go from like selling one like course at a time to subscription courses? Website started around December 2019, or the subscription is around this year, no? December 2022. So for the 3 years what I was doing is कि जब मैं courses बेच रहा था ना, तो मुझे ये लग रहा था कि alhamdulillah we have sold around 3,000 plus courses. उसमें there was always this issue कि जैसे अगर मेरी एवरेज एज जो स्टूडेंट्स की है दैट इज़ अराउंड 21 to 22 ईयर्स ओल्ड, अब उसके लिए 3,000 का कोर्स एक बार खरीदना, 3,000 का कोर्स दूसरा खरीदना, फिर तीसरा खरीदना, बिकॉज कोर्सेज तो एडिक्टिव थे। मैं प्रीमियर का कोर्स बनाया बेसिक्स का, तो देयर इज एडवांस कोर्स एज वेल। इफ इरफान हैज फोटोग्राफी कोर्स, तो किसी और का फोटोग्राफी कोर्स है या फिर फोटोशॉप का कोर्स है दैट फॉलोज ऑन, तो उनके लिए बार बार खरीदना जो है ना वो मुश्किल हो रहा था। एंड आई ऑल्सो न्यू कि अगर मैं इसकी फ़ीस थोड़ी कम करूँगा तो आई माइट ऑल्सो involve new users जो कि वेबसाइट पे सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाए बिकॉज दे डोंट हैव द मनी। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स डू इट और सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं। द ओनली प्रॉब्लम दैट वी वर हैविंग डूइंग द सब्सक्रिप्शन मॉडल वाज के देयर वाज नो वन पाकिस्तान हु वाज ऑलरेडी डन दिस। मैंने कहा कोई ना कोई तो होगा इसको जैसे कॉपी करके आगे बढ़ जाएंगे, बट देयर वाज नो वन। तो सिंस इट वाज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन पाकिस्तान, तो मुझे तो काफ़ी इशूज़ आए थे इसमें कि हाउ टू फिगर दिस आउट कि इसको करना किस तरह है, इसको शॉपिफाई से किस तरह इंटीग्रेट करना है, एंड हाउ डू वी मेक श्योर कि पीपल पेज एवरी मंथ। क्योंकि एक तो हमारा सबसे ज़्यादा आई थिंक 42% ऑफ आवर पेमेंट्स आर डन बाय ईजी पैसा। अब उस पर देयर इज़ नो रिकरिंग मॉडल, तो हाउ डू आई मेक पीपल स्विच फ्रॉम ईजी पैसा टू अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड? These were the issues. But the prime thing that I wanted to do subscription was to give all that courses access कि तमाम एक बच्चा जो आए तो उसको तमाम चीज़ें मिल जाए। अगर वो एक महीने में 30 के 30 कोर्सेज देख ले वो अच्छी बात है कि वो एक प्रोग्रेशन से देखे, एडवांस भी देखे इन ऑल द स्टफ। तो दैट इज़ what led to a subscription. But it's a 3-year process. ऐसा नहीं कि कल वेबसाइट लॉन्च की पे पर कोर्स एंड नेक्स्ट डे was subscription. So it took 3 years in the making. You mentioned a lot of names, like you, of course, you're on a first name basis with everyone, but Irfan Junejo, Moru, you were able to get them, of course, because you know them, right? So you were able to get them to create a course and everything. When it comes to learners, of course, there is a value proposition कि भाई, you have these courses, there's quality control, there's distraction free, there's a community and all that stuff, right? That is understood to them. What value proposition do you provide to instructors? अभी जो है ना मुझे उनको बताया कि देखो अभी जो है ना स्केल इतना नहीं है पाकिस्तान में जिस स्केल से जो है ना आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप आज पढ़ाओगे, बिकॉज ऑलवेज द मोटिवेशन इज मनी। आप जब टीचर आता है उसको लगता है कि इससे पैसे बनाएंगे, एंड दैट इज़ नॉट अ शेम बिकॉज आप स्किलशेयर में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, यू सेल कोर्सेज एंड सेलिंग मीन्स टू हैव मनी। उनको मैंने ये बताया कि अगर आप व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज जस्ट अ डे और 2 इन योर लाइफ, और आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट 3 years आपको पे आउट मिलेगा। बट अभी ये मत समझ के आना है स्टेप में कि यू कम हियर एंड आपको कल से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज अभी भी हमारे पास जो कस्टमर की जो नंबर्स हैं दैट आर लो, बिकॉज हम मार्केटिंग नहीं करते, वी डोंट स्पेंड इन मार्केटिंग, वी आर नॉट अ VC फंडेड कंपनी, वी डोंट हैव दैट मच बजट टू मार्केट। एंड जिस तरह हर नई कंपनी VC फंड होती है तो पूरा कराची में बिलबोर्ड सबसे शुरू हो जाते हैं। एंड मैंने सिर्फ एक बार एक बिलबोर्ड की प्राइस पूछी थी, बस 25 लाख रुपये। मैंने कहा क्या एक बिलबोर्ड इतना लिखा होता है? एंड इमेजिन दीज कंपनीज गोज ऑल अराउंड कराची and then Lahore and Islamabad as well. So imagine the budget that they are having. So I don't have that much budget, but what I'm doing is मैं उनको ये गारंटी करता हूँ कि if you stay with me in next 3 to 4 years, so then there will be a huge payout as well as the community as well as the recognition. Because अभी जो courses के response आ रहे हैं वो people are liking the courses because you always take that's जब से मैंने customer service को hire किया, so our goal is to
call 10 people every day to get the feedback. Every day there are calls happening. उसमें अच्छे feedback भी आते हैं, बुरी feedback भी आता है. जो अच्छे feedback होते हैं वो हम टीचर से शेयर भी करते हैं, बुरे भी शेयर करते हैं. But that good feedback that they have, that keeps them motivated as well. So far, I mean, of course, since you started building the startup and started taking things seriously, what's been your biggest challenge and how did you go about solving it? सबसे बड़ा challenge I would say अभी तक तो मेरे लिए यही रहा है course production. Because as easy as sounds is कि आपको कैमरा आगे शूट रिकॉर्ड करना है, इसकी वजह से ना I'm not able to scale up the number of courses. अब कैमरा एक है, स्टूडियो एक है, तो आप और फिर दूसरी बात ये होती है कि हर कोई कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होता. सो अगर आप मेरी जो है लिस्ट ऑफ टीचर्स देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर यूट्यूबर्स बिकॉज दे आर कैमरा फ्रेंडली फर्स्ट. अगर कोई टीचर जो कि बहुत अच्छा, बिकॉज मैंने अभी तक तकरीबन लेट्स से कि कोई 50+ कोर्सेज शूट करके रखे हुए, और आई ओनली पब्लिश अराउंड 23 कोर्सेज. उसकी वजह यह है कि बाकी जो कोर्सेज होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वी ट्राइड विद देम. Most of them were a faculty of a very good university in Islamabad, like very experienced faculty, but they couldn't deliver on camera because teachers के लिए जो है ना वो लाइव फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कि वो जैसे क्लास जो होती है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मैंने यूज्ड टू डू इन इकरा यूनिवर्सिटी, द स्टूडेंट ड्राइव्स द पेस ऑफ द क्लास. कि अगर आपको बात समझ में आ रही, नहीं आ रही, ठीक है, लेट्स रिपीट द थिंग, नहीं आ रही, लेट्स रिपीट अगेन. बट ऑन ऑनलाइन क्लासेज देयर आर नो वन टू ड्राइव द पेस. तो आपको सिर्फ आप पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि अच्छा यार ये आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. तो ये जो होती है ना, तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. और उसकी वजह से मुझे जो है वो टीचर्स को और कोर्सेज लाने में बड़ा मुश्किल होता है. एक तो यू नीड टू फाइंड पीपल, द टीचर्स हु आर गुड विद कैमरा, गुड विद कॉन्सेप्ट्स, एंड देन हु एग्री टू माई टर्म्स एंड कंडीशंस. कि आपको पैसे अभी नहीं मिलेंगे, आपको मतलब थोड़े जितने मिलने तो आएंगे, लेकिन ज़्यादा पैसे, because if they are teaching in university, they are expecting a huge payout. और फिर आजकल जो स्टार्टअप्स होते हैं, you have seen those startups, तो वो भी they always promise the payout first because they have the VC funded money and all that stuff. तो even और फिर वो स्टूडेंट को डिस्काउंट ऑफर्स एंड ऑल दैट स्टफ दे सकते हैं, बिकॉज उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है वो ऑफ कोर्स यू नो कि वो ज़्यादा बड़ा होता है. मेरे पास वो भी नहीं है. आई हैव लाइक ज़ीरो मार्केटिंग बजट. एक फनी स्टोरी कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, तो and I also manage them. The amount that they get paid to do a single Instagram story is more than I've ever spent on the entire 4 years for the IT stuff marketing. So that is the constraint right now, the production and the marketing. And how I'm going to solve it, like I have solved, बहुत कम मैंने solve किया है. I mean very honest, I always feel कि I'm lacking behind in marketing. But what I do is कि my customers are my word of mouth. जितने भी हैं students हैं वो एक शो कोर्सेज के बारे में बताते हैं, देन हैव अ कम्युनिटी जो कि सपोर्ट करती रहती है. I want to talk to you a little bit about like the creator economy, because on one hand the courses that you're creating are also helping other creators, you know, learn a new skill and maybe start a YouTube channel, or you know, take that those professional skills to, you know, to customers and sell themselves, right? So how is the creator economy in Pakistan you know, developed over the decade? Because I know you started really long time ago, and from that time I think you even witnessed the ban, right? So you witnessed a ban during the time that you were creating content, right? So how far has the, you know, the content creator community come along since that time? जैसे मैंने इकरा यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया था, that was 2007, and then I was introduced to this multimedia field. उस वक्त यूट्यूब बहुत न्यू था. The first, I think जो पायनियर्स माने जाते हैं यूट्यूब पाकिस्तान के, द इडियट्स दे स्टार्टेड इन 2009. उनकी जो पहली वीडियो आई 2009 में, तो हम उन्हीं को देख के बड़े हो रहे थे सब कुछ, कि हम लोग एक सेम ही एज के थे. उन्हीं को देख के थे क्या इनकी नई वीडियो आ रही है, 3 इडियट्स के नाम से पहचाने जाते थे. एंड मुझे लगता था कि यूट्यूब उस जो है ना वहाँ पे सीखने का बहुत था. आई वॉज ऑलवेज लर्निंग न्यू स्टफ. मैं अपनी यूनिवर्सिटी में वॉज मशहूर, एंड आई यूज्ड टू गेट पेड प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी बिकॉज आई हैव लाइक एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ द softwares or the animations that was happening. After Effects I was pro at that time. 3D I was used to learn, because everything a teaches something in class मुझे वो पहले पता होता है because वो on YouTube. So उसके बाद जो है वो of course as you said कि 2014 या 12 में there was a YouTube ban and massive 2 years ban, like massive. मुझे याद है कि मुझे कितने मसले होते ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज़ में, and there was no one to help. तो ऐसा लग रहा था कि कोई टीचर जो है ना वो आप किसी टीचर का किसी ने आपको छीन लिया. एंड देन दिस अगेन आई थिंक 2014 के आसपास फिर नहीं वेव आई यूट्यूब की एंड ऑल द स्टफ. बट हाँ, इसमें ये हुआ कि अभी क्योंकि द यूट्यूब वर्ल्ड सीम्स वेरी फैंसी,
क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को इंस्टेंट फेम भी मिलती है और काफ़ी लोगों को स्लो फेम मिलती है, बट फेम मिलती है एंड पीपल रिकॉग्नाइज यू कि यार अच्छा आप, अरे आपकी भी वीडियो देखी थी, तो चाहे वो एक ही वीडियो आपने क्यों ना बनाया, बट इफ़ यू, बिकॉज हमारा जो माइंड सेट है जो है ना, बिकॉज वो हुआ है टीवी के ऊपर कि यार अगर इफ समवन कम्स ऑन टीवी दैट्स अ ह्यूज थिंग कि यार आप टीवी पर आए, अभी भी अगर कोई बंदा मॉर्निंग शो या कुछ में आता है तो इट्स अ ह्यूज थिंग यार तुम टीवी पर आ गए। सो यहाँ पे लोगों का जब एक लोगों के टीवी पे आना है, अब लेट्स से सबके पास मोबाइल, सबके पास यूट्यूब है एंड एवरीवन वॉचेस यूट्यूब, तो उसके लिए जब लोगों को टीवी में आना होता है ना, तो वो बड़ा उनके लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा किसी वीडियो, इवन इफ मैं जानता हूँ काफ़ी यूट्यूब क्रिएटर्स को, इफ दे अनाउंस किया मुझे एक वीडियो माने, आई नीड योर हेल्प, आप अगर कोई भी मेरे वीडियो में आ जाए तो दे गेट लाइक 50-60 रिक्वेस्ट कि यार हाँ हम आ जाएंगे आपकी वीडियो में। और एंड दीज पीपल वर ऑल्सो शाई टू स्टार्ट एज वेल कि यार करना तो हम उन सबको करना होता है कि हाँ हमें भी यूट्यूब करना है, बट दे आर कन्फ्यूज एंड दैट इज़ वाई वी कम इन। तो हमारे इफ़ यू सी आवर कोर्सेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एज यू सेड के आर यूट्यूब क्रिएटर्स, उनसे ही सीख के इफ़ यू लर्न दैट लैंग्वेज, बिकॉज फॉर एवरी, जैसे हमारे कोर्स है स्टोरी टेलिंग का कोर्स है, नाउ आई थिंक वी हैव 1, 2, 3 स्टोरी टेलिंग कोर्सेज. One is from Naveed, who is also a YouTube creator. One is from Muru Bhai, who is also a YouTuber. One is from Vakar Bhai, who is also a YouTuber. So these three people have taught how to tell stories in their way. क्योंकि हर किसी का कहानी सुनाने का तरीका अलग होता है. So that is how we are helping people, helping students कि आप जो है वो YouTube में आए by learning from the YouTubers that you are always watching. Where is this, the creator economy in Pakistan going towards? Because, right now, like, for example, IT stuff is going to help these creators who are creating courses earn passive income, right? वैसे तो अगर कोई यूट्यूबर है, कोई क्रिएटर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, देर आर वेरी फ्यू वेन्यूज़ फॉर देम टू मेक अ लिविंग, लाइक स्पॉन्सरशिप्स हो गई, लाइक यू सेड स्टोरीज की स्पॉन्सरशिप्स और इस टाइप की चीज़ें हो गई, बट इट्स नॉट पैसिव इनकम एज लॉन्ग एज दे आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट, दे आर मेकिंग मनी, बट एज सुन एज दे स्टॉप क्रिएटिंग कॉन्टेंट द मनी गोज अवे. तो हाउ डू यू सी दैट इवॉल्विंग इन पाकिस्तान, स्पेशली बिकॉज in the West where I am, there are so many other options and people usually don't have this fear कि भाई कल कोई ना YouTube बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता. How has the creator economy in Pakistan adopted to such uncertainties? पिछले 2-3 साल में ना काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बैन अनबैन होती रही है. तो यहाँ पे आई हैव सीन अराउंड माई सेल्फ के यूट्यूबर्स हैं या ये फेसबुकर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने अपनी सेकंड लाइन ऑफ इनकम आना शुरू किए. कुछ लोगों ने ब्रांच आउट किया, दे कॉल इट एग्जिट प्लान. किसी के कैफ़ेज हैं, किसी के रेस्टोरेंट्स हैं, ऑल दोस्त, तो पीपल हैव स्टार्टेड ब्रांचिंग आउट. अब दराज हैव स्टार्टेड एफिलिएट मार्केटिंग इन पाकिस्तान, तो दैट्स अनदर थिंग कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा रहे हैं. तो उनका फ़ायदा ये होता है कि दे आर नॉट अपलोडिंग एनी वीडियोस, अगर पुरानी वीडियो में कोई लिंक है तो दे आर गेटिंग पेड आउट ऑफ इट. एंड ऑल्सो फिर कुछ लोगों ने अपने ही खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू कर दिया. तो दे आर ऑल्सो ब्रांचिंग ऑन इन दैट वे एज वेल कि अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं. तो दैट इज़ अब जो यूट्यूबर पाकिस्तान में आ रहा है ना नया नया, वो अपने एग्जिट प्लान के साथ भी आ रहा है. इफ़ दे आर गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म, दे ऑल्सो नो द एग्जिट प्लान क्या, अच्छा मुझे ब्लॉगिंग करनी है, वैसे दूसरा ब्लॉगिंग करनी है और इससे मुझे फेम मिल जाएगी ताकि मैं इस फेम को कहीं और चैनलाइज कर सकूँ. सो आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, राइट. जो यूएस में बहुत पहले हो चुका था, जिससे मिस्टर बी से शुरू किया था, देर वॉज उन्होंने मर्च लॉन्च की, फिर बीस्ट बर्गर लॉन्च हुआ, फीस्टेबल लॉन्च हो रही. तो दे आर ऑल्सो ब्रांचिंग आउट. कल अगर मिस्टर बीस्ट चैनल रुक जाता है तो देर आर अदर सोर्स ऑफ इनकम एज वेल. एंड सेम इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान. थोड़ा सा लेट हुआ है बट सेम इज़ हैपनिंग. आजकल जो है एक ट्रेंड सा चला हुआ है, maybe I'm wrong in assuming this, but I see a lot of creators trying to figure out how to either set up a base in a different country and have this back and forth, have an exit plan, like you said, have a backup plan, not an exit plan but a backup plan कि कल को कुछ होता है कि they can obviously go to a different country, they have residency there or whatever, and they can keep doing what they're doing. एक तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नज़र आई है. और दूसरा ये है कि creators जो है, is it as easy to monetize from Pakistan as it used to be? No, अभी भी फेसबुक पाकिस्तान में करंट मोनेटाइज. यू नीड टू गेट टू अदर सोर्सेज कि या किसी का कोई फेसबुक में पहचानने वाला है तो उसके थ्रू करवा दिया. एंड पीपल फॉर दिस पीपल चार्जिंग अराउंड 50%. So imagine if you're earning like $5,000 from Facebook monetization and $2,500 goes to people who are helping you do this. तो आपका 50% ऑलरेडी कहीं ना कहीं जा रहा है. और पीपल चार्ज बिकॉज फेसबुक पाकिस्तान ऑफिशियल तो है नहीं. इस तरह जो है ना काफ़ी मसले मसाइल तो हैं यहाँ पे पाकिस्तान, बिकॉज कोई फेसबुक का रिप्रेजेंटेशन ऑफिस नहीं है पाकिस्तान. टिकटॉक जस्ट केम टू पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह. स्पॉटिफाई केम टू पाकिस्तान. तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही है. बट टेक सम यूट्यूब जब पाकिस्तान में इवेंट कर यूट्यूब रिकग्नाइज पाकिस्तान के देयर इज़ द इकोनॉमी देयर हियर एज वेल.
तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी का कमिंग यार, बिकॉज ऑफकोर्स एक तो हमारा सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है पाकिस्तान का वो ये भी है कि हमारे जब बराबर में इंडिया है, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, एंड इफ दे डू समथिंग इन इंडिया, बिकॉज जैसे इंडिया का कोई भी बड़ा सीजन आता है, इट गेट्स मैसिव फॉलोइंग इन पाकिस्तान, तो वो लोग क्यों बॉदर करेंगे कि पाकिस्तान में अलग एक चीज़ बनाई जाए, क्योंकि वही चीज़ पाकिस्तान में भी केटर कर ही रही है. अब देयर आर मेनी इंडियन यूट्यूबर्स दैट वी ऑल सी in Pakistan. There are many Indian. अभी उसमें आया था Amazon में, just there's a new season of called Furzy, पर शायद कपूर है, तो पूरा पाकिस्तान ने उसको देखा, पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेडिंग चल रहा है. तो why will they bother sending them another office the same region? Because वो तो जो बड़ी कंपनीज होती है, they go for region by region. उन्होंने साउथ इंडिया का एक रीजन बनाया हुआ जिसके सारे हेड ऑफिस इंडिया में. तो अक्सर हमारा भी मैसेज होता है यूट्यूब की, जो हमें जो द पीपल दैट वी गेट फ्रॉम यूट्यूब आर इंडियंस. तो मुझे वैसा लगता है कि द लैंग्वेज दैट वी स्पीक इज सिमिलर टू द इंडिया, और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एक्सिस्टिंग जॉब है, एंड द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन इज मोर स्टेबल देयर. So that is why it takes time for companies to come, especially in Pakistan, or they take the India route. That's much easier. I'm pretty sure a lot of your audience, even on YouTube, was Indian, right? Because they understand Urdu, Hindi, right? So have you decided that, okay, once I grow to a certain extent, I will reach out to creators or instructors in India and see if they could create a course for IT stuff? I always had this plan, but I've approached a few Indians as well. But the only issue that we face, because India में ना काफ़ी already ऐसी websites है, and what they do is they pay the creator upfront. Like उन्होंने मुझसे एक बात भी, उन्होंने एक को 200,000 Indian पहले पे किया. You make the course. If sales happen, we'll give you more money. If it doesn't happen, you keep the money that we already gave you. जो कि मुझे भी एक इंडियन वेबसाइट से ऑफर हुई थी. एंड अगर इतनी लुक्रेटिव ऑफर्स इंडिया से होती है ना, इफ आई कैन नॉट ऑफर, आई इवन मैच द ऑफर, तो वो भी मेरे पास नहीं आएंगे. बट इंशाल्लाह ऐसा ऐसे इफ आई ग्रो अलॉन्ग, एंड आई डोंट थिंक आई विल बी नीडिंग एनी वीसी फंडिंग एनी सून इफ आई ग्रो अलॉन्ग दिस स्पेस, और इफ आई ग्रो ऑर्गेनिकली एंड आई कैन कीप माई शेयर्स टू माई सेल्फ. So then I have the liberty and the money, inshallah, to offer these type of things to Indian creators as well, because India is a huge market. Let's not deny that. I think anyone who, so I usually get a lot of questions about podcasting. So can a podcast shuru karna hai, kis tarah karna hai, and all those questions, right? So I always tell them, like, because my audience is a little different, so I do it in English. Like, and if you can do it in Urdu, it's better, because if you do it in Urdu or Hindi, you just have a huge Indian audience to go after. And I think India is going to have in the next 5 years a lot more YouTubers, or as in a lot of the audience on YouTube is going to be from India, and they will speak Hindi, Urdu. And if you're going after that market, you will be able to make a living off of that. And but if you go with like a certain very limited market, like which is mine, which is English, so you might not have that kind of audience. But yeah, that's something that I advise to anyone who wants to create content, is like to look at the Indian angle from the get-go. Indian or the language angle as well, कि just focus on the language. आपकी जो language, आपकी ज़बान जो बोल रहे हो, वो आपके साथ साथ 150 करोड़ लोग और भी बोल रहे हैं. एंड दैट्स द एडवांटेज एज वेल, बिकॉज यही चीज़ इंडिया भी तो फ़ायदा उठा रहा है. अगर इंडिया अपने शो बना रहा है तो उसको पता है कि मैं अपने शो बना रहा हूँ, तो बराबर वाले मुल्क के 23 करोड़ लोग के लिए भी शो वही जा रहा है, एंड दे आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस. तो बिकॉज द जबान इज सेम एंड एवरीथिंग इज सेम. इवन लाइक वी सिंग दैट सॉन्ग, वी सिंग एवरीथिंग, इवन दे सिंग आवर सॉन्ग. कोक स्टूडियो जो इंडिया में हिट हुआ था अभी, पसूड़ी वगैरह, वो क्यों हिट हुआ था? Same language, same culture. Just focus on the language. Forget the countries, forget the borders. Just focus on the language. One last question before I let you go. What are your plans for the next 6 months, 12 months, 5 years? So the first goal for the next 6 months is to do more multimedia courses. I just want to focus IT stuff. Like, it should be a multimedia website. If someone was to go for YouTube or any other field that is related to multimedia, they should be more focused on IT stuff. Yeah, यहाँ पे we can learn few stuff. That is the first year goals. In next year, मुझे इस goal को यहाँ पे रखना है. Along with this, there is another goal as well, कि focus on marketing, guerrilla marketing, get some small influencers and all those stuff, and ask them to be brand ambassadors. वो जो strategy है वो I'll just update you after the podcast कि क्या strategy we are thinking. But that's the first year goal. The second year goal is to branch out, like have more ambassadors from other fields as well. Let's take you have since I have the foundation of a media studies, तो मैं अपने आप को media स्टडीज़ के अराउंड में देख सकता, अच्छा ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है.
बट मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा भी मेरे पास आए जो कि जिसकी एक्सपर्टीज जैसे कॉर्पोरेट की हो, कि कॉर्पोरेट में किस तरह के कोर्सेज हैं. ही विल बी अ वेरी चीता और चीती इन लिंक्डइन, इन मार्केटिंग, कि यार कॉर्पोरेट, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज मार्केट इन HR ट्रेनिंग्स. आप एक कंपनी में जाते हैं, यू नीड इंटरपर्सनल स्किल्स, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दो स्टफ. एंड आई डोंट currently teach an IT side. I want to be a part of that community as well. So for the next couple of years, you will see IT stuff branching in all those fields, maybe in the medical field, maybe in a law field, maybe in other fields that are not related to media, but I want to branch out. That's the long-term goals. Thank you so much for being on the Misal podcast and sharing your journey and sharing your enthusiasm about the industry. I wish you all the best. Thank you so much, Zai. Thank you for having me here. We have been planning this last 2 months, but finally this happened. And thank you so much. I'm so honored to be here right now because I followed you because of the podcast. And now I am on the podcast. So yeah, thank you so much. Thanks for listening to the Misal podcast. I hope you enjoyed the podcast and will thank me by writing a review or sharing it on social media. Make sure you follow and subscribe so you don't miss the next episode. Thanks again. See you soon. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. He's a creative tour de force. Tour de force. Tour de force. Yes.